اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، آج پہلی بڑی اچھی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ اور اس کے اسلام، مسلم اور مدرسہ دشمنی کو سپریم کورٹ نے جھٹکا دیا، تھپڑ لگایا۔ جی ہاں، یو پی مدرسہ ایکٹ برقرار رہے گا۔ یوگی حکومت کو سپریم کورٹ نے بڑا جھٹکا دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی، عبوری روک لگا دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 17 لاکھ طلبہ کو راحت ملی ہے۔ ریاست کو سیکولر رہنا ہے، تمام مذاہب کے ساتھ احترام اور مساوی سلوک کیا جائے۔ عدالت عظمیٰ نے یوگی سرکار کو ایسی نصیحت کی۔ یعنی سپریم کورٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مسلمانوں سے دشمنی، اسلام سے دشمنی، مدرسوں کو نشانہ بنانا، علماء کو نشانہ بنانا، یوگی آدتیہ ناتھ کا جو دماغ ہے اس میں صرف یہی بھرا ہوا ہے کہ جتنا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کروں گا اتنا ہندوتوا بھگوا ٹولہ خوش ہوگا اور اس کا فائدہ ہم کو ملتا رہے گا۔ لیکن سپریم کورٹ نے یوگی آدتیہ ناتھ کو نصیحت کی کہ بھیا تمام مذاہب کا احترام اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے۔ لیکن کیا کرے، اس ملک میں ایسے ایسے لوگ گدی پر بیٹھ رہے ہیں کہ جن کے دماغوں میں زہر بھرا ہوا ہے، نفرتیں بھری ہوئی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع آخری جمعہ تھا، اور آخری جمعہ کو کئی سالوں سے پورے عالم میں یوم القدس منایا جاتا ہے۔ بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین کو یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کل میں نے بھی جمعہ میں فلسطین کے تعلق سے زبردست اللہ نے بات رکھی، میں نے رکھی بات کو وہاں پر، اور بیت المقدس، مسجد اقصی کی اہمیت اور فلسطینیوں کی شہادت اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ اب خبر آ رہی کہ گزشتہ کل مسجد اقصی پر صہیونی یہودی اسرائیلی آتنکوادی فوج نے حملہ کیا، کئی مسلح زخمی ہوئے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود جمعۃ الوداع کو یعنی گزشتہ کل 1,20,000 فرزندان توحید نے قبلہ اول مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے احتجاج بھی ہوا، ریلیاں بھی نکلی اور طوفان اقصی سے طوفان الاحرار کے نعرے بھی لگے ہیں۔
और गुज़िश्ता कल बाकायदा जुमतुल विदा के मौके पर इजरायली आतंकवादी फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर ड्रोन के ज़रिए से गैस बम फेंके, जिसके नतीजे में कई नमाजी ज़ख्मी और कई दम घुटने से बेहोश हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त वादी कश्मीर श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि गुज़िश्ता कल जुमतुल विदा के इंतहाई अहम मौके पर जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने मरकज़ी जामे मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया। इस मस्जिद को मैं देख आया हूँ, कसम खुदा की बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और इस मस्जिद को बार बार हुकूमत क्यों बंद करती है, ये बदमाशी क्यों करती है, समझ में नहीं आता है। तो इंतज़ामिया ने जुमतुल विदा के मौके पर जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। मीर वाइज़ मौलवी उमर फारूक का सख्त बरहमी के साथ ये बयान आया है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासती इंतज़ामिया के इस गैर जमहूरी और नाजायज़ नापाक फैसले के खिलाफ मीर वाइज़ ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ताहम हुक्काम ने मीर वाइज़ की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को सील करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी नाकाम बना दिया। इस दौरान मीर वाइज़ ने रियासती इंतज़ामिया के इस फैसले पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया के जरिए एक पैगाम जारी किया। मीर वाइज़ ने बरहम होकर यह कहा कि रियासती हुक्काम ने ज़बरदस्ती जामे मस्जिद के दरवाज़ों पर ताले लगाकर हमसे ये मुबारक मौका छीन लिया, जो कि न सिर्फ हम सब के लिए शदीद तकलीफ वाली बात है, हम जम्मू कश्मीर के अवाम इस सरकारी गुंडागर्दी, आमिरियत और मजहबी हुकूक की बराह रास्त खिलाफ वर्जी पर सरापा एहतजाज हैं। अय्यादीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि NCERT ने 12वीं की किताबों से, यानी आप सोचें कि कितने ख़तरनाक अंदाज में किताबों से हिस्ट्री भी निकाल दी जा रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात फसाद का हवाला, ये तमाम चीज़ें जिससे हिंदुत्व टोले की कमज़ोरी का पता चलता है। जी हाँ, वो तमाम चीज़ें NCERT ने 12वीं की किताब से हटा दिया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 12वीं जमात की सियासियात की किताब से बाबरी मस्जिद इंहदाम, यानी जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हिंदुओं ने किया था, हिंदुत्व ब्रिगेड और हिंदुत्व आतंकवादियों ने किया था, बाबरी मस्जिद का मसला वो और हिंदुत्व सियासत, और 2002 में के गुजरात फसाद ने जिस तरीके से इन्होंने नंगा नाच खेला था, वो तमाम चीज़ें इन लोगों ने सिलेबस से हटा दी। पिछले कुछ सालों में NCERT ने निसाब में इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियां कर दी है। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी जुमेरात को NCERT ने अपनी वेबसाइट पर इस बात को आम किया। निसाबी किताबें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिससे हिंदुस्तान में तकरीबन यूँ समझिए कि 30,000 स्कूल मुंसलिक है। और अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे वो चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है जो मुसलमानों पर जुल्म की जो कहानियाँ थी, या फिर यूँ समझिए कि हिंदुत्व टोले ने जो आतंकवाद का नंगा नाच खेला जिससे हिंदुत्व कमज़ोरियों का पता चलता है, तो ऐसी तमाम चीज़ें भी सिलेबस से हटाई जा रही है। और तारीख़ से मुसलमानों की क़ुरबानियाँ, मुसलमानों का योगदान, मुसलमानों के एहसानात के किस्से भी हटाए जा रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों ने इस मुल्क पर एहसान किया, कैसे इस मुल्क को सजाया सवारा। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी घटिया खबर आ रही है, यानी हुकूमत कितने घटिया और नीच हरकतें कर रही है, ये खबर आप देखिए। लोकसभा इलेक्शन आ गया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी नफरतें खूब फैलाई जाएंगी, उसका एक सबूत इस वक्त मेरे पास में आ गया। खबर आ रही है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले नफरतें फैलाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच द केरला स्टोरी, जो एक नापाक फिल्म थी, जो एक घटिया और नीच किस्म की फिल्म थी जिससे मुल्क का माहौल खराब हुआ था, तो वो द केरला स्टोरी जो झूठी फिल्म है वो दूरदर्शन यानी जो सरकारी चैनल है उस पर चलाई जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने सरकारी चैनल दूरदर्शन पर इस घटिया फिल्म के टेलीकास्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। केरला कांग्रेस के लीडर और असेंबली में अपोजिशन लीडर VD ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखकर दूरदर्शन पर फिल्म द केरला स्टोरी दिखाने के फैसले को
वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने लिखा है कि मालूम हुआ है कि फिल्म केरला कहानी दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो रही है। मेरा मानना है कि ये फिल्म मुल्क को नफरतों में झोंक देगी। ये संघ परिवार के आतंकवादी एजेंडे का हिस्सा है। आइए दिन बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री, आप जानते हैं इस शख्स को बड़ा इस्तेमाल किया गया इसको भी नफरतें फैलाने के लिए। जैसे किसी ज़माने में 2013 में बाबा रामदेव को बीजेपी ने खूब इस्तेमाल किया था, ऐसे ही लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम को भी खूब इस्तेमाल किया गया, खूब प्रोपेगेंडा और खूब बिल्कुल हर तरीके से प्रमोट किया गया। अब ये खबरें आ रही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इस गुस्ताख ने नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी की। अब इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के खिलाफ मुस्लिम रहनुमाओं ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक कोतवाली में FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। इल्ज़ाम है कि उसने एक मंच से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह है। हालांकि जब तनाज़ा बढ़ता देखा इस बाबा ने तो फिर अपनी सफाई भी पेश कर दी और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और फिर कहने लगा कि नहीं, मैं भी उनका बड़ा आदर करता हूँ, उनकी इज्जत मेरे दिल में है, अगर किसी को मेरे बयान से तकलीफ पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी अब माफ़ी मांग रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मुंबई से बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मुंबई में एक पार्क का नाम, गार्डन का नाम गुजराती में लिखने पर हंगामा हुआ। प्रोफेसर जिमखाना संस्था को मुंबई का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस जारी किया। बोरीवली में मुंबई कॉरपोरेशन के स्वतंत्र वीर सावरकर पार्क में पार्क के सामने गुजराती जबान में नाम का बोर्ड लगाया गया। इस पर इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। अब मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में पार्क की देखभाल के जिम्मेदार इदारे को नोटिस जारी कर दिया है। अगले 2 रोज में गुजराती नाम की तख्तियां हटाने का हुक्म दे दिया है। यानी आप समझ सकते हैं क्या चल रहा है। और महाराष्ट्र में भी अब कैसी कैसी नफरतें फैल रही है। पार्क में देखभाल, मरम्मत और दीगर काम जिस तंजीम के जरिए किए जाते हैं, उस तंजीम को बाकायदा मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने नोटिस जारी कर दिया है। और पार्क के बीचों बीच मराठी में और दूसरी तरफ अंग्रेजी और गुजराती में नाम का बोर्ड वहां पर लगा हुआ है। मरकज के सह लिसानी फार्मूले के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी के साथ इलाकाई जबान भी लाजमी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। बड़ी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के इलेक्शन में वोटिंग फीसद बढ़ाने पर गौर किया है और यही काम हम भी कर रहे हैं। हमने गुज़िश्ता कल भी तकरीबन तमाम उलमाए किराम ने जुमा के बयानात में मुसलमानों को वोटिंग की अहमियत समझाया और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर मैंने गुज़िश्ता कल जुमा में बयान किया और मुसलमानों को यह भी समझाया, क्योंकि मुसलमानों में कुछ ऐसे जाहिल भी रहते हैं कि अगर मुसल्ले पर यह बात करो जुमा के बयान में, अरे यार ये सियासत की पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। ये सियासत की पॉलिटिक्स की बातें नहीं, बल्कि ये इस वक्त मुल्क को और कौम को बचाने की बातें हैं। कि अगर मुल्क को बचाना है, मुसलमानों को हमने समझाया कि अगर इस मुल्क को जुल्म से बचाना है, जालिमों से बचाना है, वो लोग जो मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, वो लोग जो मदरसों पर हमले कर रहे हैं, वो लोग जो मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं, वो लोग जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं, अगर इन तमाम आतंकियों से मुल्क को बचाना है, नफरतें फैलाने वालों से मुल्क को बचाना है, तो फिर वोटिंग फीसद अपना बढ़ाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वोट का इख्तियार आपको मिला है। अगर आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो जब जालिम आपके सरों पर बैठ जाएगा तो फिर अल्लाह से शिकायत मत करना, क्योंकि अल्लाह ने तुमको एक मौका दिया था अपने वोट के सही इस्तेमाल करने का। बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने अपना लोकसभा इलेक्शन का मैनिफेस्टो
जारी कर दिया। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में यानी मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने गरीबों को इंसाफ फराहम करने का वादा किया है। कांग्रेस ने 2024 के इलेक्शन के लिए हाथ बदलेगा हालत के नारे के साथ अपना मंशूर जारी किया। यानी हाथ बदलेगा हालत, यानी पंजा कांग्रेस बदलेगी मुल्क की हालत, ऐसा इस तारे के साथ उन्होंने अपना मंशूर जारी किया और कहा कि ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं बल्कि ये न्याय पत्र है जो मुल्क के लोगों को 5 न्याय यानी इंसाफ के साथ 25 गारंटियां देता है और गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी, मंशूर कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने जुमा के दिन पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका तौर पर कांग्रेस का मंशूर जारी करते हुए कहा कि मंशूर इंसाफ की गारंटी देता है, इसलिए इसे न्याय पत्र कहा गया है। इसमें तमाम अहले वतन से इंसाफ का वादा किया गया है और लोगों को यकीन दिलाया गया है कि कांग्रेस को वोट देने से पूरे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। आइए बड़ी अफसोस का खबर मैं इसे कहूंगा। जी हां, मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिर बयान दिया है कि यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड को नाफिज करना यह हमारा अज़्म है, हमारा इरादा है, हमारी कोशिश है, हमारा मिशन है और एनआरसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ऐसे 2 बयान उन्होंने दिए हैं और उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो एनआरसी के मामले में और यकसा सिविल कोड के मामले में मुल्क की आवाम को और ख़ासतौर से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ये नहीं मालूम है कि कॉमन सिविल कोड मुल्क को तोड़ कर रख देगा, या मालूम तो होगा लेकिन इन लोगों की सियासत ही मुल्क को तोड़ने की है, मुल्क में नफरतें फैलाने की है, क्योंकि यकसा सिविल कोड हमारे संविधान के खिलाफ है। संविधान ने हम सबको जो मजहबी आज़ादी दी है, यकसा सिविल कोड उसके खिलाफ है और संविधान के खिलाफ इंशाअल्लाह हम मुल्क में कोई काम होने नहीं देंगे। हम अपने संविधान की सुरक्षा करेंगे, ऐसा मूल निवासियों ने भी कसम खाई है।